السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ ووٹ چوری، راہل گاندھی کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، 7 دن میں ثبوت یا معذرت خواہی۔ سینٹرل الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس۔ سیاسی انتقام لینے کے لیے نہیں، تلنگانہ کی ترقی واحد مقصد۔ تلنگانہ کے دعوے دار TV چینل اور اخبارات قائم کیے ہیں، وزیر اعلیٰ کی BRS پر تنقید۔ ریونت ریڈی کے فیوچر سٹی کا کوئی مستقبل نہیں، فارماسٹی اراضی کو ریئل اسٹیٹ کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، KTR کا الزام۔ اور غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے 8 اسپا سینٹرز پر پولیس کا دھاوا، 40 سے زیادہ کسٹمرز اور اسپا کا عملہ گرفتار، مالک فرار۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔
इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपने 2 साथी कमिश्नरान के साथ इस मामले में पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के दावे को मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को दस्तूर के मुताबिक करवाने का दावा किया है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को कर्नाटक के हल्के पार्लियामेंट बेंगलुरु सेंट्रल के तहत असेंबली हल्के माधवपुर में 1,250 वोटों की चोरी का कमीशन पर इल्जाम लगाया और कहा कि कमीशन की मदद से बीजेपी ने इख्तिदार हासिल किया है। राहुल गांधी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस दी जाएगी कि वो अंदरून 7 यौम इन इल्जामात पर अपना हलफनामा दाखिल करें या फिर कौम से मुआज़रत ख़्वाही करें। उन्होंने कहा कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई है। 1 घंटा 24 मिनट जारी रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एतराफ़ किया कि फहरिस्त में बेशुमार अफराद की मकान नंबरात 0 हैं, इसलिए कि ये अफराद बेघर हैं। 0 मकानात को मौजू बनाना मुल्क के बेघर गरीबों की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने कायदे अपोजिशन के दावों को रद्द करते हुए कहा कि वोटर की मर्जी के बगैर उनकी गैरमजाज तशहीर नामुनासिब है। वाज़ेह हो कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन कायदीन ने जाली वोटर्स या उम्र रसीदा वोटर्स के हवाले से चंद तस्वीर जारी की थीं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जारी SIR के कामों को जारी रखने का ऐलान किया। समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की PPTs बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए ये कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में ये नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं, और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा
या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसी से हरगिज सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। उनके इख्तिदार पर आने का वाहिद मकसद तेलंगाना आवाम की फलाह बहबूद और उनकी इज्जत व नामूस है। हफ्ते की शाम एक किताब की रस्म इजरा अंजाम देते हुए उन्होंने कहा कि वो रियासत की मईशत को 2047 तक 3 खरब डॉलर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अपने शख्सी मफाद के लिए उन्होंने किसी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि गरीबों के मफाद और रियासत की तरक्की के लिए जुस्तजू करते आ रहे हैं। अवाम ने उन्हें जिस मकसद के लिए इख्तिदार सौंपा वो उसके लिए कमर बस्ता हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में उन्होंने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था और 17 साल के कैरियर में वो वज़ीर आला बन गए। जो कायदीन तेलंगाना के दावेदार बने बैठे हैं उनके टीवी चैनल्स और अखबारात हैं। उनके बजाय अवाम ने उन्हें क्यों मुंतखब किया, इसको समझने की ज़रूरत है। पिछली BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि रंगीन आलिशान इमारतें खड़ा करना तरक्की नहीं है, बल्कि हकीकी तरक्की एक गरीब की इज्जत व नफ्स होती है। उन्होंने कहा कि बेघर अफराद के लिए 4 लाख इंदिरमा मकानात तामीर किए गए। तेलंगाना उम्मीदों की सरजमीन है। उन्होंने तेलुगु शायर अंदश्री और किताब के मौलिफ श्रीराम की सताइश की। ప్రజల యొక్క ఆలోచన, ప్రజలకు ప్రేరణనివ్వాలి, ప్రేరేపితం చేయాలి, ప్రజల్ని నడిపించాలన్న ఒక సంకల్పంతో వాళ్ళు ముందుకు నడిపించిండ్రు. అందుకే 10 సంవత్సరాల ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కానీ, అంతకంటే ముందు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రజాప్రతినిధిగా పాల్గొన్నప్పుడు కానీ, ఈనాడు 20 నెలలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించిన తర్వాత కానీ ఏ రోజు కూడా అందశ్రీ గారి పట్ల మొదటి రోజు ఉన్న గౌరవం ఈ రోజు వరకు ఆ గౌరవం పెరిగింది తప్ప ఎక్కడ తగ్గలే. ఈరోజు చాలామంది నీకు అధికారం వచ్చింది కదా, నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళని ఏదైనా చేయడానికి నీకు అవకాశం ఉంది కదా అంటే నేను చెప్పిన, నేను ఎవరిని శత్రువులుగా చూడను. నేను శత్రువుగా చూడాలంటే కూడా వాళ్ళకి ఆ గొప్పతనం ఉండాలి, ఆ స్థాయి కూడా ఉండాలి. నేను ఒక సామాన్యమైన గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి, వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి సరిగ్గా 17 సంవత్సరాలు 2006లో జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిన, 2007లో ఎమ్మెల్సీగా ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిన, 2009లో మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన, 2014 రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన, 2019లో పార్లమెంట్ సభ్యుడు, దేశంలోనే పెద్ద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గమైన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గెలిచిన, 2023లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కాగలిగింది. BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी का कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी की आराजी को अपने साथियों और अरकान ख़ानदान के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी की आराजी रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात 2 साल पहले ही असेंबली में इंतबाह दिया था। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी का कोई विजन नहीं है, इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए फार्मासिटी की सरमायाकारी वापस हो जाएगी, 1 लाख अफराद के रोजगार के मौके रुक जाएंगे। रियासत की मफादात के लिए किसानों ने आराजी देकर धोखा खाया है। इस पूरे मामले में हुकूमत फौरन वजाहत करे, वरना BRS पार्टी जिद्दोजहद करेगी। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पीर के दिन से सर्वे करने वालों को तरबियत देने के दूसरे मरहले का आगाज होगा। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि लाइसेंस सर्वेयर को पीर से दूसरे मरहले की तरबियत दी जाएगी। 23 अजला में उनको तरबियत दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार हैं वो मुताल्लिका ज़िले पर पीर के दिन सुबह 10 बजे के अंदर रिपोर्ट करें। 2 अक्टूबर के दिन उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। गांधी भवन में पार्टी डिसिप्लिन शिकनी करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कमेटी का इजलास कमेटी के सदर मल्लू रवि की सदारत में मुनक्किद हुआ।
इस इजलास में लिए गए फैसले के मुताबिक वरंगल में जारी सियासी सरगर्मियों पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ कमेटी तश्कील देने के लिए टीपीसीसी के चीफ को मकतूब लिखा गया। गजवेल के करीब डीसीसी नरसा रेड्डी ने हमला किया था, इसकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। राजगोपाल रेड्डी के मामले में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा मंगल को एक बार फिर इजलास होगा। इस इजलास में राजगोपाल रेड्डी के मामले पर बहस होगी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने कहा कि वोट की खातिर, इख्तिदार की खातिर मुल्क की सलामती को खतरे में डालना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कामयाब होने वाली कांग्रेस पार्टी है, यहां पर भी ईवीएम के जरिए इंतखाबात होते हैं। उन्होंने कहा कि कामयाब होंगे, मशीन काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। शक होने पर इलेक्शन कमीशन बराबर काम नहीं कर रहा है, यह सोच बिल्कुल गलत है। बिहार सरहदी इलाका है, वहां बांग्लादेशी और दीगर इलाकों से आने का मौका है। ऐसे आने वालों को आधार कार्ड, सिटीजन कार्ड मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाज हिदायत जारी की हैं, इसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। इसका पार्टी से, हुकूमत से क्या ताल्लुक है? बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर के ईश्वर ने कहा कि रियासत में 253 बेस्ट को कांग्रेस हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में 17,000 सीटों का इजाफा हुआ है। 26,000 तलबा को बिल्स की अदायगी न करने पर उनको निकाल रहे हैं। 26,000 तलबा के बिल्स को 2 साल से अदा नहीं कर रहे हैं। हुकूमत फौरन इन बिल्स की अदायगी करे। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में दाखिलों में कमी आ रही है। 283 गुरुकुल स्कूल्स में उम्मीद से कम दाखिले हुए हैं। ये हुकूमत की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए जियो 617 जारी किया गया है। इस जियो से 20,000 खानदान मुतासिर होंगे। हुकूमत फौरन इस जियो को मंसूख करे। बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये जियो लेकर आए हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि सैलाब के पानी से खराब हुई फसल पर खराब सियासत करना बंद कर दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को किसानों से ज्यादा सियासी मफादात अजीज हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट नाम पर हुकूमत पानी को समंदर में ज़ाय कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही है। पानी की अहमियत किसानों को मालूम है, रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी को मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों के झगड़े में किसानों का नुकसान हो रहा है। कृष्णा गोदावरी का पानी समंदर के हवाले हो रहा है। आंख के अंधे की तरह रेवंत रेड्डी देख रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ने के झूठ को सच साबित करने के लिए मोटर शुरू नहीं कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि सैलाब के पानी से रिजर्वायर, झीलों को सैराब किया गया। रबी के मौसम में लाखों एकड़ अराजी पर काश्त होगी। उन्होंने फौरन मोटर शुरू करके यौमिया 2 टीएमसी पानी मिडमानीर और दीगर रिजर्वायर को जारी करने का मुतालबा किया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुस्तकबिल में आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस कामयाब होगी। राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे। विशाखापट्टनम में मुनक्किदा स्टॉप वोट चोरी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों में पानी का तनाज़ा चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हासिल करने की वजह पानी के हुकूक हासिल करना है। उन्होंने कहा कि रियासत के प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पानी मख्तस करने का फैसला होगा। इसके बाद ही फाजिल पानी पर मुबाहिस होंगे। उन्होंने कहा कि समंदर में जाने वाले पानी के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। गोदावरी नदी पर हम जो प्रोजेक्ट्स तामीर कर रहे हैं वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। वो मुकम्मल होने के बाद ही दोनों रियासतों को मख्तस करदा पानी के फैसले के बाद ही मजीद प्रोजेक्ट्स तामीर करेंगे। तकसीम के फैसले से पहले अगर कोई प्रोजेक्ट तामीर किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद से ज़्यादा रियासत के मफादात अजीज़ हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना प्रोजेक्ट की तामील मुकम्मल होने से पहले कोई और प्रोजेक्ट तामीर न करें, इससे मसाइल पैदा होंगे। मरकजी व मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि नक्सलाइट के साथ बातचीत करके क्या हासिल किया है। नक्सलाइट के हाथों मारे गए एबीयूपी तलबा को खिरात पेश करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कगार क्यों खत्म करना चाहिए, मासूम अफराद को कत्ल करने पर खामोश क्यों बैठे। नक्सलाइट्स की गोलियों से 50,000 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी परचम लहराते हुए नक्सलाइट्स कौन से देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट और बुलेट एक ही जगह नहीं रह सकते हैं। नक्सलाइट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 2026 तक मुल्क नक्सलाइट से पाक होगा। नक्सलाइट मुक्त भारत हमारा मकसद है। तेलंगाना आरटीसी ने यौम आज़ादी के तोहफे के तौर पर हैदराबाद के लिए खुशखबरी सुनाई है। ट्रैवल यू लाइक
के टिकटों की कीमतें कम कर दी हैं। हुक्काम ने बताया कि कमशुदा कीमतें इस माह के 31 तारीख तक नाफिजुल अमल रहेंगी। इन टिकटों की खरीदारी का सहूलत मेट्रो डीलक्स बसों के साथ साथ सिटी, आम बसों और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में भी 24 घंटे फराहम किया गया है। इस ऐलान के तहत बालिग मुसाफिरों के लिए 150 रुपए का टिकट कीमत घटाकर 130 रुपए कर दिए गए हैं। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के टिकटों में 10 रुपए की कमी की गई है। बच्चों के लिए पहले ये टिकट 100 रुपए में दस्तयाब थे, जिसे अब 90 रुपए कर दिया गया है। महकमे मौसमियात IMD ने पीर को वस्त महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने पीर को शहरी कर्नाटक, अंदरून जनूबी कर्नाटक, मगरबी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ मकामात पर भी इंतहाई भारी बारिश की पेशकशी की है। साथ ही महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, साहिली आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की पेशकशी की है। दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मौसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। भारी बारिश के बाइस SDRF की टीम ने जिला आदिलाबाद के एक गांव में घर में फंसे 6 अफराद खानदान को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। तेलंगाना भर में हो रही शदीद बारिश के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए महकमे पंचायत राज की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम 11 और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम हैदराबाद में मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का इस्तक़बालिया कमेटी ने जायज़ा लिया। इस जश्न की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस्तक़बालिया कमेटी ने ज़ैली कमेटियों की कारकर्दगी और मुख्तलिफ कायदीन और कारकुनों को दी जा रही जिम्मेदारियों का खुलासा किया। सदर इस्तक़बालिया कमेटी रुकन असम्बली याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। मोतमद कमेटी मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि इस मरतबा ये जश्न अज़ीम शान होगा, इसलिए कि यह विलादत बासादत का 1500वां जश्न होगा। इसकी अहमियत और ख़ुसूसियत के पेश नज़र सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वसीतर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने अजला से आने वाले मंदूबीन के शहर में 2 रोज़ा क़याम ताम और दीगर सहूलतों से मुतालिक ज़ैली कमेटी की जिम्मेदारी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के सुपुर्द की, जिसमें हल्क़े असम्बली चार मीनार के इंचार्ज साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, शोबे तंजीम के समद बिन अब्दाद और दीगर शामिल होंगे। 11 रबीउल अव्वल की शब दारुस्सलाम हैदराबाद में अजला के सदूर मोतमदीन मंदूबीन का इजलास होगा। इस शब नातिया मुशायरा भी मुनक़िद होगा। बैरूनी मेहमान मुकर्रर, बैरूनी शुअरा के क़याम और दीगर इंतज़ाम प्रोटोकॉल कमेटी के ज़िम्मे होंगे। नशर व इशात, दूरदर्शन, रेडियो, आमदरफ्त के लिए RTC बसों के इंतज़ामात के मजाज रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की ज़ेर क़यादत कमेटी होगी। दारुस्सलाम के अंदरूनी और बैरूनी उमूर के लिए रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग मजाज होंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफिंदी ने CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने 95 दरख्वास्त गुजारों में मज़कूरा चेक्स तकसीम किए, जिसकी मालियत 48,75,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रियाजुल हसन आफिंदी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासत नगर डिवीजन के रुकन बलदिया सलीम बेग के अलावा मोहम्मद आसिफ और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्क़े असम्बली गोशा महल के इलाक़े जहात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जाम बाग डिवीज़न, बेगम बाज़ार और 7 हेवन रेस्टोरेंट के अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने मकीनों के अलावा ताजिरों से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और एक सुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने बेगम बाज़ार पिछली मार्केट की पाइपलाइन बंद होने की वजह से एक नई पाइपलाइन बिछाने का इरादा जाहिर किया है। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। शास्त्रीपुरम के SAR गार्डन के करीब आग लगने का वाक़या पेश आया। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया को बताया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब करीब 11 बजे अचानक SAR गार्डन के करीब आग लग गई, जो थोड़ी ही देर में फैल गई। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर वो मुकाम वाक़या पहुंचकर फायर ब्रिगेड्स को तलब किया और आग बुझाई गई। आग लगने की वजूहात शॉर्ट सर्किट बताई जाती हैं। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन हदूद में गैरकानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 8 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने धावे किए। पुलिस ने वासवी कॉलोनी, कोट्टापेट, नागौल, साईनगर, अलकापुर इलाकों में ये धावे किए हैं। पब चलाने वाले अफराद, मैनेजर और खातून अमला 40 से ज्यादा कस्टमर्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि बाज अफराद जो स्पा सेंटर के मालिक हैं वो फरार हैं। पब इंतजामिया चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वोट चोरी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, 7 दिन में सबूत या माजरत ख्वाही। सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी इंतकाम लेने के लिए नहीं, तेलंगाना की तरक्की वाहिद मकसद। तेलंगाना के दावेदार टीवी चैनल और अखबारात कायम किए हैं। वजीर आला की BRS पर तनकीद। रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी का कोई मुस्तकबिल नहीं। फार्मासिटी आराजी को रियल एस्टेट कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, KTR का इल्जाम। और गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 8 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का धावा। 40 से ज्यादा कस्टमर्स और स्पा का अमला गिरफ्तार, मालिक फरार।
اور ناظرین اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.